Good morning students. How are you all? Today we are going to solve worksheet number 2. This worksheet is framed from your notebook questions, textbook and your session notes. So please do refer this material for solving the worksheet. Question number 1. Choose the correct option. Which stage in life history of silkworm is known as caterpillar? Cocoon, pupa, butterfly or larva? Larva is known as a caterpillar. Which fiber burns with the odor of burning plastic? Pure silk, wool, artificial silk, cotton. So answer is artificial silk. When you burn artificial silk, the odor comes as burning plastic. Muga is which of the following type? Wool, silk, jute, ship. It is silk. Wool of which animal is more common in Tibet and Ladakh? Yak, camel, goat, llama. It is yak. Silk fiber are made up of which of the following? Carbohydrates, lipid, protein and none of this. So answer is protein. State true or false. Sericulture is a very old occupation in India. It is true. The food of silkworm is generally leaves of the mulberry trees. True. Wool and silk are made up of protein. It is true. Silk moth is the next stage from silkworm. False. Answer the following in one sentence. Usually in which season are the hair of ship removed? Ship के hair कौन सी season में निकालते हैं? Usually the hair of ship are removed in summer, hot weather, that is summer season. क्योंकि गर्मियों में उन्हें हेयर से ज़्यादा गर्मी लगती है, तो समर सीजन में हेयर को हटाया जाता है और जब विंटर सीजन आता है तब तक दूसरे हेयर उनके ग्रो हो जाते हैं. A soft skin, a soft silk yarn is as strong as which metal? The soft silk yarn is as strong as comparable to thread of steel. यानी स्टील का जो थ्रेड होता है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिल्क यार्न होता है. What is the function of thick hair on the body of animal supplying wool? The function of thick hair on the body of animal supplying wool is to keep the animal warm and to protect them against cold. यानी ये जो एनिमल्स होते हैं जो हमें वूल देते हैं वो उसके ऊपर थिक हेयर क्यों होते हैं? ताकि वो लोग ठंड से खुद को बचा सकते हैं. And most children we get wool eating animals in the cold environment. Why sharing does not hurt the ship? Sharing does not hurt the ship because fleece and uppermost layer of skin are made up of dead cell. जब उनके स्किन से हेयर हटाया जाता है, हेयर कैसे हटाते हैं वो लोग? They are taking a thin layer of skin with the hair. But why it does not hurt? Because the uppermost layer of the skin, जो स्किन की ऊपर की लेयर होती है और जो हेयर होते हैं, they are made up of dead cells and proteins. Mention the 3 names of Indian breeds of sheep. Indian breeds of sheep are Lohi, Bakharwal and Patanwadi. Match the following. Scouring. Now what do you mean by scouring? Scouring is क्लीनिंग शेड स्किन. यानी स्किन के साथ जो हेयर को हटाया जाता है वूल के लिए उसे हम क्या कहते हैं? स्काउरिंग. Mulberry leaves is food of silkworm, that is option D. For scouring it is option C. For mulberry leaves it is option D. Yak, it is wool yielding animal, so it is option B. Cocoon, it is yield silk fiber. कोकून हमें क्या देते हैं? सिल्क
fibers. Define the following terms. Sericulture. The rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture. Sericulture क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? जो सिल्कवॉर्म को रेयर करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं सिल्क ऑब्टेन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज सेरिकल्चर. रेयरिंग. द प्रोसेस ऑफ कीपिंग, फीडिंग, ब्रीडिंग एंड मेडिकल केयर ऑफ इकोनॉमिकली यूजफुल एनिमल्स इज कॉल्ड रेयरिंग. यानी जो एनिमल को ध्यान रखते हैं, उसे हम रखते हैं, फीड करते हैं, उनकी मेडिकल केयर लेते हैं, राइट, फॉर इकोनॉमिकल यूज मीन्स टू अर्न, दैट इज कॉल्ड एज रेयरिंग. Shearing. The process of removing the fleece of the ship along with thin layer of skin is called shearing. यानी thin layer of skin निकालते हैं हम जो ship की hair लेने के लिए, उसे हम कहते हैं shearing. Answer the following in 3 to 4 sentences. What type of food is given to ship rearing for wool? Ships are herbivores. They eat grass and leaves of plant. Apart from grazing, ship rearers also feed them a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes and minerals. In winter, sheep are kept indoor and feed on leaves, grains and dry fodder. यानी शिप हर्बीवोरस है, तो उनके लिए जो रेयरर होते हैं, यानी जो शिप्स को रखते हैं, वो उन्हें ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं और अपने घर पे मिक्सचर पल्सेस का जो पाउडर होता है वो देते हैं, उसके अंदर कॉर्न, जुआर, ऑयल केक्स और मिनरल्स भी डालते हैं, राइट. एंड जब विंटर सीजन होती है तब उन्हें घर के अंदर रखा जाता है और उन्हें लीव्स, ग्रेन्स और ड्राई फोडर खिलाया जाता है. मेंशन द स्टेप्स ऑफ प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल. द स्टेप ऑफ प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल आर एज फॉलोज. शेयरिंग, स्काउरिंग, शॉर्टिंग, drying, dyeing and spinning. These are the steps for processing of wool. How are selection of sheep done to obtain good quality wool? Some breeds of sheep possesses only fine under hair. Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. This process of selecting parents for obtaining special characteristics in their offspring's soft underhair in sheep is called selective breeding. Selective breeding किसे कहते हैं? यानी जो शिप्स, स्पेशल शिप्स को रखा जाता है उसके अंडर हेयर लेने के लिए, क्योंकि सब शिप्स के हेयर की क्वालिटी डिफरेंट होती है, तो जैसे उनके पेरेंट्स होते हैं वैसे ही उनके यंग वंस के हेयर होते हैं, तो उन्हें डिफरेंट कलर या तो फिर डिफरेंट टेक्सचर में पाने के लिए उसी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए उन्हें ब्रीड किया जाता है, राइट, टू गेट देयर सॉफ्ट हेयर. गिव साइंटिफिक रीजन. हेयर ऑफ शिप आर रिमूव ड्यूरिंग वेदर टू ऑब्टेन वूल. हेयर ऑफ शिप कीप देम वार्म इन कोल्ड सीजन. इफ हेयर ऑफ शिप आर रिमूव्ड इन विंटर देन दे डू नॉट गेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड. In hot weather, sheep are able to survive without their protective coat of hair. Hair removal season देख के क्यों निकाला जाता है? क्योंकि जो शिप होती है उसे हेयर की ज़रूरत विंटर सीजन में होती है टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, और समर सीजन में उन्हें हेयर की ज़रूरत नहीं होती है. दैट इज़ वाई द रेयरर रिमूव्स द हेयर ऑफ द शिप इन समर सीजन एंड दे डू नॉट रिमूव इन विंटर सीजन. और जो वूल आता है वो विंटर सीजन में उन्हें सेल करने के लिए काम भी आता है, राइट. कुकून आर केप्ट इन बॉइलिंग वाटर टू ऑब्टेन सिल्क थ्रेड. द कैटरपिलर ऑफ सिल्क मोथ कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर एंड टर्न इनटू प्यूपा. वो खुद को जो सिक्रीशन होता है, उनके माउथ से जो सिक्रीशन निकलता है उसके वो अपने बॉडी के अराउंड उसे कवर कर लेते हैं, राइट, एंड दे टर्न्स कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर. अब जो वो सिक्रीशन होता है वो ड्राई होने के बाद हार्ड हो जाता है, तो दे कन्वर्ट इनटू सिल्क फाइबर एंड इंटर्न टर्न्स इनटू प्यूपा, और उसके बाद सिल्क फाइबर के अंदर ही वो लोग प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं.
दिस कवरिंग इज नोन एज कुकुन, यानी जो सिल्क मोथ होते हैं वो सबसे पहले जब वॉर्म्स के फॉर्म में होते हैं तो वो अपने आजू बाजू क्या करते हैं, सिल्क फाइबर को कवर कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कुकुन। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कुकुन। सिल्क मोथ कम्स आउट बाय कटिंग ऑफ सिल्क फाइबर। अब क्या होता है, जैसे जैसे वो मैच्योर होते हैं वो सिल्क मोथ में कन्वर्ट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, थ्रेड्स को काट के बाहर उड़ जाते हैं। सो बिफोर सिल्क मोथ फॉर्म्ड फ्रॉम प्यूपा, कुकुन आर केप्ट इन बॉइलिंग वाटर टू ऑब्टेन सिल्क थ्रेड। अगर वो सिल्क थ्रेड काट के बाहर निकल जाते हैं तो सिल्क थ्रेड को हम वापस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो पूरा सिल्क थ्रेड लेने के लिए उन्हें कुकुन स्टेज में ही बॉइलिंग वाटर में डाला जाता है ताकि उन्हें पूरा सिल्क का थ्रेड मिले। डिफरेंस बिटवीन वूल एंड सिल्क। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप और याक। वूल हमें कहाँ से मिलता है, शिप और याक से। सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, सिल्क मोथ से, कुकुन ऑफ सिल्क मोथ। शॉल, स्वेटर्स, मफलर्स एक्सेट्रा आर मेड फ्रॉम वूल। सिल्क साड़ी, लूज गाउन, सिल्क ड्रेस एक्सेट्रा आर मेड फ्रॉम सिल्क। Write a note on stages in the life history of the silk moth. There are 4 stages in the life history of silk moth. Example, that is egg, larva, pupa and silk moth. ये जो 4 स्टेज है वो सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री यानी लाइफ साइकिल है। फर्स्ट, एग। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। Female silk moth lays eggs on the leaves of mulberry trees. Larva. Incubated egg hatched out larva is called caterpillar और silkworm. जब लार्वा को हैच किया जाता है, इंक्यूबेट यानी उसे गर्मी दी जाती है, उसके एग में से क्या निकलता है, कैटरपिलर और सिल्कवर्म। It stops eating after eating leaves of mulberry up to 25 to 30 days. यानी जब वो एग के बाहर आते हैं तब 25 to 30 days तक वो लोग लीव्स ही खाते हैं and become dormant. Pupa. Now caterpillar enters in third stage of its life history called pupa. इसके बाद वो थर्ड स्टेज में कन्वर्ट होते हैं। It first weaves a nest to hold itself. Then it swings its head from side to side. पहले वो क्या करते हैं, एक नेट जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं खुद को होल्ड करने के लिए। उसके बाद वो दोनों साइड की तरफ जाके they form the figure of 8. वो 8 का फिगर बनाते हैं। During this movement of the head, caterpillar secretes fiber made of protein which hardens on exposure to air. जब वो प्रोटीन का सिक्रीशन निकालते हैं तो वो जैसे ही एयर को एक्सपोज होता है वो हार्ड होने लगता है and becomes silk fiber. Soon the silk fiber and turns into soon the caterpillar completely covers itself by silk fiber and turns into pupa. This covering is called cocoon, right? Silk moth. The further development of pupa into moth continues inside the cocoon. Finally, silk moth comes out by breaking cocoon. उसके बाद क्या होता है, फर्दर उनके डेवलपमेंट स्टेजेस आगे चलते हैं और प्यूपा, राइट, द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून, और कोकून के अंदर ही वो ग्रो करते हैं। फाइनली सिल्क मोथ कम्स आउट बाय ब्रेकिंग कोकून, और फाइनली जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो कोकून को कट करके बाहर आते हैं। सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कंप्लीट वर्कशीट नंबर 2. Thank you and have a nice day, children. And after seeing the worksheet, you have to write worksheet in your revision notebook. Thank you and have a nice day, children.